Hello, my dear students. Welcome to the math classes. I wish you Merry Christmas. Student has written on the board, volume 2nd, straight line. So, today I am going to start second volume of M.L. Agrawal. Today I am going to start first chapter of that volume, straight line. So today I will teach basic things regarding the straight line. Most of things already you have studied in previous class 10th. So related to that things I will teach today. So let's start today class. Student, first I will start about how can you find distance between 2 points. If 2 points are given, so how can you solve distance between 2 points? This is the 2 points P, x1, y1, q, x2, y2. These two coordinates are given. That how can you find distance between these 2 points? To find the distance, PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This formula has to be used to find the distance between two given points. Okay. Now, after this, if this is the midpoint, coordinate of this midpoint will be xy. If it is the midpoint, so this will divide, means this will divide equally. Okay, student, before this I want to tell about the section formula. If this R divide the line PQ into the ratio M ratio N, so that is the internal division. That this is called the section formula. So I am going to discuss about the section formula. So as you know, to find the x and y, we can apply the formula x is equal to mx2 plus nx1 upon sum of the ratio. If this point R divide the line PQ, line segment PQ in the ratio M ratio N, then we can find x by mx2 plus nx1 upon sum of the ratio. Similarly, we have to use this formula, for y also same method, my2, that will be for the ordinate. Now this is the abscissa, this is the ordinate. So my2 plus ny1 whole upon m plus n. So to find a point which divide the line segment in the ratio M ratio N, we have to apply this formula. Alright. Now if R is the midpoint, then this both sides mean that ratio M and N will be equal. M is equal to N. In that case, let it is the 1:1. So in that case, what will be? We can find this will be m के स्थान पर 1 लिख देंगे, n के स्थान पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 plus 1 लिख देंगे. So to find if R is the midpoint, यदि R midpoint है तो x plus x1 plus y1 upon 2, x2 plus y2 upon 2. We have to apply this formula if R is the midpoint of line segment PQ. ठीक है, ये सब आप जानते हैं पिछली क्लास से. So this was about the section formula, and previous one was the distance formula to find the distance between 2 points. That then after this I will discuss about centroid. How can you find the centroid of a triangle? I hope you all know about the centroid. What is the centroid? Centroid
It is a point inside the triangle at which median intersect that. Median intersect. This way, ये median है, mean this equal to that, this equal to that. So this point is called a centroid. इस तरह से यहाँ से भी ड्रा कर देंगे. So this is a point inside the circle, inside the triangle at which median intersect. मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं सेंट्रॉइड. यह पॉइंट G, suppose G is the centroid and A, B, C are the vertices of the triangle. Or the vertices of the triangle. Let coordinate be x1 y1, this x2 y2, this x3 y3. This point G, that is the centroid, divide this line AD into ratio 2:1. ये part 2 होगा, this part will be 1. So how can you find a centroid G? Coordinate of the centroid G. G का coordinate कैसे आप निकाल सकते हैं ये भी आप जानते हैं. D का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, because D is the मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि AD is a मीडियन. टू फाइंड D क्या करते हैं हम, सम ऑफ एब्सिसा अपॉन 2 x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड सम ऑफ कोऑर्डिनेट अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा. ठीक है. नाउ बाय सेक्शन फार्मूला यू हैव टू फाइंड द G निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं. सपोज दिस इज M, दिस इज द N. A का कोऑर्डिनेट इधर x1 y1 है और D का कोऑर्डिनेट ये हो गया. ठीक है. तो G निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एब्सिसा पार्ट 1 इंटू दिस एब्सिसा पार्ट अपॉन 2 प्लस 1. जैसे सेक्शन फार्मूला में अप्लाई किया था उसी तरह से 2 इंटू, जैसे M रेशियो N है, mx2 nx1 अपॉन m प्लस n. The same process you have to apply here. G is equal to coordinate. So G is equal to what will be 2 into this. So 2 x2 plus x3 upon 2 into abscissa this means 2 into m into x2 and x1 प्लस 1 इंटू x1. तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा. ओके. होल अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1. फर्स्ट हो गया एब्सिसा के लिए. नाउ सिमिलरली फॉर द ऑर्डिनेट m y2 प्लस n y1. तो व्हाट विल बी हियर 2 इंटू y2 प्लस y3 upon 2 plus ny1, that means the y1 whole upon what 2 plus 1. right. here 2 will be cancel. यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इसको अगर सॉल्व करें दिस विल गेट G x 2 कैंसिल x2 plus x3 plus x1 upon 2 plus 1 3. So we found that x1 plus x2 plus x3 upon what 3. right. Similarly here 2 cancel that y2 plus y3 plus y1 upon 3. तो यहाँ पर लिखेंगे remove it y1 plus y2 plus y3 upon 3. So this formula we have to use to find the centroid of a triangle if all the vertices of the triangles are given, right. x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. right. This was centroid. Then after this next I want to discuss about the incenter. that incenter. ठीक है. incenter. that for incenter what is
that is also given that in central of a triangle, in center of a triangle, in center of a what? Triangle. We have to find in center of a triangle. That. Do you know in center of a triangle? That I hope that you all know about this. In center. चलिए हम बता भी देते हैं जो है in center. This is the triangle. ये triangle हम लेते हैं. So in center mean that it is a point inside the triangle at which, ठीक है, it is a point of the inside the triangle at which bisectors line, angle of bisector lines intersected. जैसे ये है, this is B, this is the C. तो A का बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, सपोज दैट दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ A. ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा. नाउ दिस इज बाइसेक्टर ऑफ B, ठीक है, एंड सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ C वी कैन ड्रा दैट. सो लेट दिस intersect at point I. This I is called in center of a triangle. Okay, so it is a point inside the triangle at which bisector lines intersected, or it is a point, या आप ये भी कह सकते हैं it is a point inside the triangle from which sides are equidistant. यहाँ से जो साइड होगा इसका इक्विडिस्टेंस होगा, इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा. इसको सेंटर मान करके यदि हम सर्किल ड्रा करेंगे तो क्या होगा? सर्किल टच करेगा किसको? साइड्स को यह टच करेगा. सो इट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. इसको यदि हम इस तरह से ड्रा करेंगे, आप ऐसे ड्रा करेंगे, सो इट विल टच, ये टच करेगा जो है, ठीक है, साइड को. दिस विल बी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हेड. Okay, so what will be coordinate of in center of triangle? Let's discuss about that. Okay, this is a triangle with the vertices x1, y1, b, x2, y2, c, x3 and y3. Okay, this is the bisector line D. Suppose this is the I in center. That I means in center कब होगा? जब एंगल bisectors of bisectors line, bisector of angles will be intersect. So this is called a in center. ये in center है. Let ABC be the sides of the triangle. That ABC, let ABC are the sides of the किसका? ट्रायंगल का. अच्छा, साइड से हम ले रहे हैं तो BC किसके इक्वल होगा? एक एंगल A के सामने स्मॉल ए होगा, एंगल B के सामने स्मॉल B होगा, एंगल C के सामने स्मॉल C होगा. सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू व्हाट? देखिए C, AB हो रहा है तो दैट इज C. देन AC इज इक्वल टू B एंड BC इज इक्वल टू व्हाट? A. ठीक है, दिस विल बी A के सामने A, this will be C and this will be B. We have to represent this way, that small a, small b, small c. Okay, as you know from the previous class that AD if bisector, if it is the bisector, so BD upon DC, BD upon what? DC will be equal to
AB अपॉन AC। ठीक है, ये क्लास 10th और 9th में आपको पढ़ाया गया है कि इफ बाइसेक्टर्स मीट अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, so this will be divided into the ratio, so BD upon DC will be equal to AB upon AC। that AB, what is AB? इस साइड का क्या वैल्यू लिए हैं? AB is equal to C, that will be C upon AC क्या होगा? B। इट मीन द BD अपॉन DC ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C रेशियो B की रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, BD अपॉन DC दैट विल बी इक्वल टू C रेशियो B, या C रेशियो B में डिवाइड करेगा। ओके, अच्छा, वी हैव टू फाइंड इन सेंटर I, हमें ये निकालना है। इसे निकालने के लिए जैसे आपको हमने सेंट्रॉइड निकाल कर दिखा दिया कि ये रेशियो दिस शुड बी नो, ये नॉन होना चाहिए, दिस रेशियो दिस शुड बी नोन दैट, तभी हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट आगे देखिए। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी आई हैव टू फाइंड दैट इन सेंटर आई, इसको निकालने के लिए हमको D चाहिए और A चाहिए, क्योंकि सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो सेक्शन फार्मूला कब लग पाएगा? यदि दोनों पॉइंट दिया हो और एक पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो रेशियो में, तो हमको निकालना है कि DI और AI मिल जाए, D पॉइंट मिल जाए। A ऑलरेडी यहाँ मैं कंसिडर कर चुका हूँ। D देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि D कैसे आएगा। सब D, दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट BC इन द रेशियो C रेशियो B। तो हमने लिखा CX2 प्लस CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B। सिमिलरली CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B। ठीक है भाई, सेक्शन फार्मूला से मैंने D पॉइंट को लिख दिया यहाँ पर। आइए, see this is the bisector angle, this is also bisector angle, this bisector angle divide the line AD in DI and AI। so in that case we can write in triangle ABD में यदि देखें, in triangle ABD में DI upon AI, DI upon AI is equal to BD upon BA। ओके, बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर्स। ठीक है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। जैसे हम बताए थे कि AD BC को डिवाइड कर रहा था, तो हम क्या लिखे थे कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू BD अपॉन DC इज इक्वल टू AP अपॉन AC। सिमिलरली हियर BD अपॉन BA दैट इज इक्वल टू BD अपॉन BA का वैल्यू क्या आ जाएगा? C हो जाएगा, क्योंकि एंगल C के सामने ये साइड क्या होगा? C होगा। नाउ let this is the second part because first already we taken that। now ठीक है, हमको यदि BD निकल जाता है तो DI अपॉन AI चाहिए, हमें BD निकाल लेना है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन एज यू नो हमने क्या निकाला था? BD अपॉन DC हम निकाले थे, BD अपॉन DC इक्वल टू C अपॉन B निकाला था। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ही आया था, BD अपॉन DC इक्वल टू C अपॉन B आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। या BD अपॉन, देखिए यह BD है, ठीक है, BD का वैल्यू कितना? C है, तो BD इट मीन दैट BD प्लस DC इक्वल टू C अपॉन BD कितना है? C प्लस B है। या नाउ BD प्लस DC दैट विल बी इक्वल टू BC, सो वी कैन राइट
बी डी अपॉन व्हाट, बी सी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस बी। बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस बी, राइट। बी सी का वैल्यू कितना है, ए है, क्योंकि एंगल ए के सामने साइड को ए मानेंगे, बी के सामने को बी मानेंगे और सी के सामने को सी मानेंगे। सो बी सी कितना लिख दें हम, बी सी कितना है, ए है, तो लिख देंगे यहाँ ए। सो वी कैन राइट बी डी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन सी प्लस बी, राइट। ट्रांसपोज दिस ए दैट साइड, सो कैन वी राइट बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी प्लस बी। ये जो बी डी है इसको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो एम है क्या कि डी आई अपॉन ए आई ये आ जाएगा। सो पुट दिस इन सेकंड, सो फ्रॉम सेकंड, इस सेकंड से हम देखें, सो वी कैन राइट क्या, डी आई अपॉन ए आई इज इक्वल टू बी डी के स्थान पर हम लिखने जा रहे हैं ए सी अपॉन सी प्लस बी अपॉन क्या, सी, ठीक है। ये सी कैंसिल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस बी। सो वी फाउंड डी आई अपॉन ए आई इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए अपॉन सी प्लस बी। इट मीन दैट यह पार्ट आपका ए हो जा रहा और यह पार्ट ए आई कितना हो रहा, सी प्लस बी हो जा रहा, ठीक है। दिस मच पार्ट ए और दिस मच पार्ट सी प्लस बी हो जा रहा। नाउ सेक्शन फार्मूला से अब आई निकालना। नाउ वी हैव टू फाइंड आई बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। क्या निकालेंगे, देखिए एम एक्स टू एन एक्स, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट कहाँ लिखे, मैं इधर लिख दिया हूँ जो है, ठीक है। चलिए ना हम पहले डिलीट कर दें, क्लियर हो गया, ओके। लिटिल लेंदी। सो डी आई अपॉन ए आई वी फाउंड एट ए अपॉन सी प्लस बी। नाउ टू फाइंड आई, हमें आई निकालना है। आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जरा यह पार्ट समझ लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो रिमूव दिस, ओके। नाउ ए एक्स वन प्लस दिस इंटू एब्सिसा, ये वाला पार्ट, तो क्या होगा सी प्लस बी और ये पार्ट हो जाएगा सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, ठीक है, ओके। अब आइए ऑर्डिनेट वाला पार्ट लिखते हैं। ए वाई वन, आगे जगह नहीं नीचे लिख देते हैं, ए वाई वन प्लस दिस इंटू ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट इधर पर है, सी प्लस बी सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू होल अपॉन सी प्लस बी। अच्छा टोटल क्या छूटा, हाँ, दिस विल बी होल अपॉन, जरा यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, यह एम का कार्य कर रहा है, एन का, तो एम प्लस एन होगा तो ए प्लस सी प्लस बी। इसी तरह से हियर आल्सो विल बी अपॉन ए प्लस सी प्लस बी। दिस इज द कैंसिल, दिस इज द कैंसिल, इसको हमने कैंसिल किया ब्रैकेट में। नाउ लेट मी rewrite here. So we can write in center ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c in order. इसको ऑर्डर में लिख दिया. सिमिलरली
फॉर द abscissa ay1 plus by2 plus cy3 whole upon a plus b plus c, that is coordinate of in center of a triangle. ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. This is the in center coordinate of in center. Hope concept is clear. That if not clear, so once again you watch the video, it will be clear. That now next topic will be area of a triangle. Yeah, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। हालांकि आपको फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन हम डिराइव कर दे रहे हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. हाउ कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ 3 vertices of a triangles are given. That as ABC is a triangle, we have to find area of this triangle. हमको ये एरिया निकालना है ऑफ दिस ट्रायंगल, ये वाला. ओके, we have to find the area of this triangle. That okay, to find the area of this triangle, full figure minus this empty figure. Right, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ. टू फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ये जो इतना एरिया कवर कर रहा है, इसका एरिया माइनस एम्प्टी एरिया, ये जो खाली स्थान है हटा दीजिए. वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दैट ओके. सो फॉर दिस वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द ट्रेपेजियम. ठीक है, ट्रेपेजियम का यहाँ सहारा लेंगे. एज यू नो दैट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, आप ट्रेपेजियम बहुत अच्छी तरह जानते हैं. दिस इज द ट्रेपेजियम, दिस 2 sides आर द पैरेलल एंड दिस इज द हाइट. टू फाइंड द एरिया, मान लीजिए यह ए है, दिस इज द बी. टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन द ए प्लस बी इनटू व्हाट? height, mean that height between 2 parallel side. That this is the formula we have to use to find the area of this trapezium. So इस formula का हमें help इस फिगर में लेना है जो. ओके, आई होप दैट यू नो अबाउट दिस फॉर्मूला, सभी लोग जानते होंगे. सो लेट स्टार्ट अबाउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल. हाउ कैन यू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल? ABC are the vertices given that as shown in the diagram. That to find एरिया ऑफ दिस, हम देखिए इसमें आपको दिखा दे जो है, यह ए बी एन एम एक ट्रेपेजियम बन रहा है. ठीक है, इसमें क्या होगा? बी एन एंड ए एम पैरेलल साइड हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बिटवीन द साइड है, हाइट का काम कर जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ए एम एल सी, दिस इज द नेक्स्ट ट्रेपेजियम. In this AM and CL both are the parallel and LM will be perpendicular between 2 parallel lines. So by using or with the help of this trapezium, you have to find the area of the triangle. चलिए ठीक है. Before this हमको चाहिए क्या? हमको NM चाहिए. ठीक है, क्या चाहिए? ML चाहिए. ये सब पार्ट हमको चाहिए. उसके बाद क्या चाहिए हमको? BN चाहिए. और क्या चाहिए हमको? AM चाहिए. इसी तरह से ML चाहिए, क्या नाम है? CL चाहिए. देखिए यहाँ पर x3 y3, इट मीन दैट यहाँ से अगर मेजर करें हम तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसका? सॉरी एब्सिसा क्या बनेगा? x3 बनेगा. यहाँ से L की दूरी O to L डिस्टेंस विल बी x3. ठीक है, इसी तरह से O से M की डिस्टेंस कितना होगा? x1 होगा. यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा? x1 होगा. O to N क्या होगा? x2 होगा. ये x2 होगा. ठीक है, क्लियर है ना बाय द फिगर दैट x1 y1. ठीक है, इसी तरह से आइए, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 हो जाएगा. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y3 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, सो टू फाइंड दैट व्हाट? NM यहाँ से लिखते हैं. NM इज इक्वल टू OM माइनस ON. OM कितना है?
x1 है और ये कितना है x2 है, तो दैट विल बी x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, राइट। ml निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो है, देखिए यहाँ से लेकर के x3 है OL में से क्या करेंगे OM को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा ml मिल जाएगा। सो ml इज इक्वल टू x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 दैट, ठीक है, श्योर हो जाइए। दैट इज वेरी इजी, वेरी क्लियर दैट अबाउट कोऑर्डिनेट। नाउ वन मोर थिंग्स वी हैव टू फाइंड। I hope that concept is clear that now student one more thing we have to find that NAL भी हमको निकालना है, क्योंकि NAL पूरे ये ट्रेपेजियम का पार्ट हो जाएगा। so NAL इज इक्वल टू NL, बता दीजिए क्या होगा NL, ध्यान दीजिए फ्रॉम ईयर टू ईयर x3 है और OM कितना NL निकाले, सॉरी वी हैव टू फाइंड NAL निकालने के लिए क्या करेंगे x3 से ON को हटा देंगे, माइनस करेंगे। OL हाउ मच x3, और हमको निकालना क्या है NAL, इसको निकालने के लिए x3 में से x2 क्या करेंगे हटाएंगे, माइनस करेंगे। तो NAL इज इक्वल टू x3 माइनस x2, क्लियर। अच्छा NB कितना है y2 है, NB इज इक्वल टू y2, चलिए y2, then AM is equal to y1 and CL is equal to y3, ठीक है। now one by one we have to use that, तो ठीक। now एरिया ऑफ दिस ट्राइपेजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइपेजियम, ये पूरा लेकर के एरिया ऑफ ट्राइपेजियम कौन कौन ABNAM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AMLC में, ये पूरा आ गया। में से क्या करेंगे एम्प्टी पार्ट BNLC को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यही फंडा है इसका जो है, दैट विल बी क्लियर दैट। सो लेट मी राइट दैट टू सेव दैट टाइम। सो नाउ स्टूडेंट्स आई रिटन हियर, यू कैन चेक आउट इट। See, to find the area of triangle ABC, we have to find the area of this part plus area of this part minus area of this empty part. Clear? So, this part area में this is a trapezium ABNAM, ABNAM एक trapezium है, उसका एरिया निकालिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट NAM, ओके। प्लस सिमिलरली दिस एरिया के लिए हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड AM प्लस CL इंटू ML माइनस ये एम्प्टी वाला पार्ट जो ट्रेपेजियम बन रहा है BNCL को हम माइनस कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा BN प्लस CL इंटू NL, ओके। देन पुट ऑल द वैल्यूज हाफ BN मीन दैट y2 प्लस y1 x2 माइनस x1 NAM यहाँ से निकाल करके मैं रख दिया हूँ जो है। इसी तरह से जो है हाफ y1 प्लस y3 इसके लिए AM प्लस CL इंटू x3 माइनस x1 ML इधर में लिखा हूँ, सॉल्व किया हूँ, प्लस हाफ BN प्लस CL y2 प्लस y3 BN y2 प्लस y3 इंटू ये x3 माइनस x2 दैट इज NL x3 माइनस x2 यहाँ पर मैं सॉल्व किया हूँ जो है, ओके। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आपका एक फाइनल रिजल्ट बनता है। लेट मी डिलीट दिस, इसको हटाने दीजिए सब, इसकी ज़रूरत नहीं है जो है, ठीक है। हाफ हम कॉमन ले लेते हैं जो है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है, आप यू कैन सी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो है, या थोड़ा टाइम का बचत हम देखना चाहते हैं जो है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका रिजल्ट आएगा x1 y2 माइनस y1, x1 साइक्लिक आएगा y2 माइनस y1, ठीक है, प्लस सिमिलरली प्लस x2 y3 माइनस y1, x2 y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2 प्लस y1 माइनस प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है।
ये आएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1 plus x3. Okay, this is the area of a triangle. Okay, half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Okay, then one more things. Okay students, so this was the area of a triangle. One thing here that I think that is little wrong is looking y2 minus y3, y2 minus y3, then y3 minus y1, then y1 minus y2, इस तरह चलेगा y2 से y3 then y1, ठीक है, साइक्लिक होगा जो है, ठीक है, x1 x2 x3 y2 y3 then y1, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज आएगा. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज फर्स्ट इज वेरी basic things having that related to class 10, so you have to use this formula and you start that exercise. Then next day I will teach about some more thing that how can find a slope, what will be if two lines are perpendicular, if two lines are parallel, etc. that. Then also I will teach about that if we one more thing even, yeah, shifting of origin. So today this much is enough. Then on the basis of this formula you have to start the exercise. Okay, thanks all of you.